Hello everyone, this is Professor Pawan Shankar and I welcome you in a 49th lecture of Mechanics of Material, and today's topic is thick cylinder. We have completed derivation and numericals over thin cylinder, and today's topic is a thick cylinder. We directly deal with the numerical. Basically, what is thick cylinder? For thin cylinder we have discussed the definition. When thickness is 1 by 15th to 1 by 20th times of diameter, then this type of cylinder is known as a thin cylinder. Thin cylinder. Okay. When this definition is not followed, that type of cylinder is known as a thick cylinder. Okay. So what we call thick cylinder as when a thickness of that cylinder is not 1 by 15th to 1 by 20th times of diameter, then that type of cylinder is known as a thick cylinder. Okay. So in thick cylinder, basically two types of pressures are considered. Number one is radial pressure. Radial pressure, and the equation for radial pressure is Px equal to B by x square minus A, where Px is a fluid pressure, B and A are the numeric constant, and x is a boundary condition. Okay, if we talk about the cylinder, so cylinder has a inner and outer radius because it is a thick cylinder. So suppose Ri or R1 is a inner radius, Ro is outer radius. Okay, so a radial pressure at inner radius and outer radius, it means, so x is a nothing but the boundary condition. And second stress or the pressure is hoop stress. Hoop stress, this is generally occurred in the material of that thickness of cylinder and is given by sigma x is equal to B by x square plus A. Again, B and A are the numeric constant, x is a boundary condition, that means hoop stress at inner radius, that means x is equal to R1, and hoop stress at outer radius, that means x is equal to R2 or RO, and sigma x is a notation for hoop stress. So these two equations we will use while solving the numericals. Okay, so directly we'll start the numerical. So first numerical is determine the maximum and minimum hoop stress across the section of a pipe of 400 mm internal diameter and 100 mm thick when the pipe contains a fluid at a pressure of 8 Newton per mm square. Also sketch radial pressure distribution and hoop stress distribution across the section. तो सबसे पहले जो डाटा हमें दिया है वो हम कलेक्ट करते हैं. Given data is 400 mm internal diameter, so D1 equal to 400 mm. Ultimately radius, inner radius will be 200 mm. Now what will be the outer radius? Outer radius क्या रहेगी? देखो यहाँ पे 100 mm थिक बोला है, तो ये सिलेंडर वॉल है, इनर रेडियस दी है 200 mm और ये थिकनेस हो गई, तो आउटर रेडियस कितनी रहेगी? इनर रेडियस प्लस थिकनेस. सो आउटर रेडियस RO इक्वल टू इनर रेडियस R1 प्लस थिकनेस. सो 200 प्लस 100 equal to 300 mm. Got it? Now when a pipe contains fluid at a pressure of 8 Newton per mm square, that means fluid pressure is given as 8 Newton per mm square. They ask for sketching the radial pressure distribution and hoop stress distribution. That means whatever the pressure that we will calculate, like radial pressure as well as hoop stress, that is to be drawn, that is to be shown dramatically. So now we have calculated R1 as well as the thickness, and we have fluid pressure as 8 Newton per mm square. So we'll start with the radial pressure. So radial pressure Px is given by
इक्वेशन इज पी एक्स इक्वल टू बी बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं हम, एट एक्स इक्वल टू आर वन। आर वन मीन्स इनर रेडियस, तो आर वन कितना है 200 mm, और जो फ्लूइड की इनर वॉल है फ्लूइड प्रेशर वहीं पे एक्ट होगा। ठीक है, ये कंटेनर है सपोज, और यहाँ पे फ्लूइड फील्ड है, तो जो इनर वॉल रहेगी फ्लूइड प्रेशर वहीं पे ज़्यादा मैक्सिमम एक्ट रहेगा। सो पी एक्स कहाँ पे, आर वन पे, इनर पोर्शन पे वो कितना रहेगा, जो फ्लूइड प्रेशर दिया है वो, और दैट इज गिवन एज अ पी ओ इक्वल टू 8 Newton per mm square. Getting? So at inner part equation is px की वैल्यू कितनी है 8, b हमें पता नहीं है, x कितना है, इनर रेडियस है दैट इज 200 स्क्वायर माइनस a। तो ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या रहेगी, x इक्वल टू आउटर रेडियस दैट इज r2, r2 कितना है 300 mm, और आउटर रेडियस पे फ्लूइड प्रेशर कितना है, एक्चुअली फ्लूइड प्रेशर जो कुछ भी एक्ट हो रहा है वो इनर वॉल पे एक्ट हो रहा है, आउटर वॉल है, यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर कुछ भी नहीं है। सो दैट मीन्स पी एक्स इक्वल टू 0। गेटिंग? सो यही इक्वेशन पी एक्स वाला इक्वेशन यहाँ पे क्या रहेगा फिर 0 इक्वल टू, क्योंकि फ्लूइड प्रेशर 0 है, बी एज इट इज़ बी बाय एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे R2 प्लेस करना है, सो 300 स्क्वायर माइनस ए। तो ये हो गया इक्वेशन 2। क्लियर है, समझ में आ गया? देखो सबसे पहले हमने डाटा लिखा, डायमीटर, रेडियस, देन हमने आउटर रेडियस फाइंड आउट किया, फिर यहाँ पे उसके बाद में हमें फ्लूइड प्रेशर पता था 8 Newton per mm स्क्वायर। सबसे पहले इक्वेशन कौन सा यूज़ करना है, रेडियल प्रेशर। रेडियल प्रेशर का इक्वेशन है हमारे पास में पी एक्स इक्वल टू बी बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, इनर रेडियस, तो इनर रेडियस जितनी है वो हमने पुटअप की एज अ 200 mm, और इनर रेडियस पे ही फ्लूइड प्रेशर एक्ट हो रहा है दैट इज 8 Newton per mm स्क्वायर। तो पी एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू हमने एज इट इज पुट की 8 और 200। क्लियर? नाउ सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या रहेगी, आउटर रेडियस, तो एक्स इज इक्वल टू R2, तो ये हो गई 300 mm, और आउटर रेडियस, आउटर सरफेस पे, सॉरी आउटर रेडियस पे फ्लूइड प्रेशर कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 0। तो यही इक्वेशन फिर से हम कंटिन्यू करेंगे पी एक्स वाला। सो पी एक्स इक्वल टू 0 है, बी बाय एक्स स्क्वायर मतलब 300 स्क्वायर माइनस ए। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, बस साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं। 8 इज इक्वल टू बी बाय 200 स्क्वायर माइनस ए एंड 0 इज इक्वल टू बी बाय 300 स्क्वायर माइनस ए। सो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाला इक्वेशन है सीधा सीधा। आप दोनों इक्वेशन सॉल्व करो कैलसी पे एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो आफ्टर सॉल्विंग वैल्यू ऑफ बी इज 576000। These are just a number and value of A is 6.4। तो हमने A और B कैलकुलेट किए हैं, अब हम ये कंप्लीट इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट किया है, न्यूमेरिक कांस्टेंट। अब हमें क्या देखना है, रेडियल प्रेशर तो हमारे पास में गिवन है ऑलरेडी, इनर वॉल पे रेडियल प्रेशर है 8 Newton per mm स्क्वायर, आउटर पे 0। जैसे मैंने बताया था कि दो टाइप के स्ट्रेसेस यहाँ पे जनरली एक्ट होगी, एक है रेडियल प्रेशर और स्ट्रेस, सेकंड है हूप स्ट्रेस। ओके, सो हूप स्ट्रेस की वैल्यू हमें निकालनी है। नाउ हूप स्ट्रेस इज गिवन बाय, क्या इक्वेशन है, सिग्मा एक्स इक्वल टू बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, फिर से हम दोनों बाउंड्री इक्वेशन यूज करेंगे, और अब हमारे पास में ए और बी की वैल्यूज भी है। वी नो दैट ए इज 6.4 एंड बी इज 576000। तो ये दोनों वैल्यूज हम यूज करेंगे। नाउ हम बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू,
x is equal to first boundary condition is inner radius, that is r1 equal to 200 mm. तो सिग्मा एक्स कितना हुआ, सिग्मा एक्स इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ अभी, सिग्मा एक्स इक्वल टू बी की वैल्यू है 576,000 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, मतलब कितना लिखेंगे हम 200 स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू है 6.4, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, हेंस सिग्मा एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू आनी चाहिए, सिग्मा एक्स 20.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आ गया हुप स्ट्रेस, ये कहाँ पे आया, एट इनर रेडियस, एट इनर रेडियस, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में हमने x कितना पुटअप किया, r1, एंड बाउंड्री कंडीशन चेंज कर देंगे हम, एट x इक्वल टू r2, मतलब कितना है 300 mm। सो इक्वेशन सिग्मा एक्स इक्वल टू बी की वैल्यू है 576,000 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे r2 स्क्वायर, दैट इज़ 300 स्क्वायर प्लस ए, एंड ए इज़ 6.4। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आया, या फिर आना चाहिए 12.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये होगी हुप स्ट्रेस की वैल्यू इनर रेडियस पे और आउटर रेडियस पे। हर बार यहाँ पे रेडियल प्रेशर की भी दो वैल्यू है, इनर सरफेस आउटर सरफेस पे, और हुप स्ट्रेस की वैल्यू भी दो है, इनर सरफेस आउटर सरफेस। ओके, तो ये जो चार वैल्यूज़ है ये हमें शो करनी है रेडियल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और हुप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे। सो हियर रेडियल प्रेशर एंड हुप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एक्चुअल एग्जाम में आपको भी शो करना है। सो देखो, सबसे पहले तो एक बेस लाइन लेनी है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। नाउ यहाँ पे मैं सिलेंडर की इनर वॉल शो कर रहा हूँ, और ये होगी सपोज आउटर वॉल। ओके, सपोज दिस इज द सेंटर, तो ये हो गई हमारी आउटर रेडियस RO इक्वल टू 300 mm, और सपोज ये है R1 इक्वल टू 200 mm। क्लियर? सपोज ये हो गया आपका पॉइंट A और B। नाउ जो डैश लाइन है उसके ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे हम शो करेंगे रेडियल प्रेशर अबव बेस लाइन और अबव डैश लाइन, ये पूरा पोर्शन रहेगा रेडियल प्रेशर, और बेस लाइन के नीचे रहेगा हुप स्ट्रेस। सो रेडियल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऊपर रहेगा और हुप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेस लाइन के नीचे रहेगा। नाउ यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये हो गया हमारा 0 पॉइंट। अब रेडियल प्रेशर की बात करते हैं। रेडियल प्रेशर इनर सरफेस पे, तो ये इनर सरफेस है पॉइंट ए, तो ये रेडियल प्रेशर कितना है यहाँ पे 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अप्रोप्रिएट कोई भी स्केल लेके हम सपोज यहाँ पे हमने शो कर दिया दिस वैल्यू इज 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो ये पॉइंट दे दिया मैंने सपोज सी, और आउटर सरफेस पे रेडियल प्रेशर कितना है वो है 0। सो सपोज ये 0 पॉइंट है, तो यहाँ से हम मैं इंक चेंज कर रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। बाय स्ट्रेट लाइन हमने 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिखाया है, तो ये हो गया आपका फ्लूइड प्रेशर इस पॉइंट पे, और बाद में डी पे आना है 0। तो यहाँ पे ये लीनियरली नहीं आएगा, ये थोड़ा सा कर्व आएगा, ये हो गया 0।
ठीक है। नाउ बेस लाइन के ऊपर क्या दिखाया हमने, यहाँ पे दिखाया हमने पी ओ दैट इज 8 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और यहाँ पे 0 पी एक्स इक्वल टू 0 ये। नाउ हुप स्ट्रेस एट इनर सरफेस कितना है, देख लो वैल्यू एक बार। हुप स्ट्रेस एट इनर रेडियस इज 20.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एंड ये हो गया आपका आउटर रेडियस पे, आउटर रेडियस पे 12.8। सो आउटर रेडियस पे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन 8 से ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे आया, और सपोज़ यहाँ पे ए बी सी हो गया, मैं यहाँ पे डी पॉइंट शो कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू है 20.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक। ओके, सपोज ये पॉइंट, और आउटर सरफेस पे भी हुप स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है, वो कितनी है 12 पॉइंट समथिंग। तो अगर ये 20 है तो थोड़ा सा यहाँ तक मैं आ रहा हूँ, ये भी सिग्मा R1 कर देते हैं हम इसको, और ये सिग्मा R2, ठीक है। तो सिग्मा R1 दैट मीन्स हुप स्ट्रेस एट रेडियस R1, एंड सिग्मा R2 मतलब हुप स्ट्रेस एट रेडियस R2। तो ये सिलेंडर वॉल के अगेंस्ट ही उसके इक्वल ही आना है, और यहाँ पे फिर से कर्व, तो ये हो गया आपका रेडियल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और ये हो गया हुप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। गॉट इट। ये वैल्यू है 20.8 और ये वैल्यू थी 12.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी, यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो इन दिस वे वी शुड ड्रॉ radial pressure and hoop stress distribution curve. Got it? Now see second numerical. Find the thickness of metal necessary for cylindrical shell of internal diameter 160 mm to withstand internal pressure of 8 Newton per mm square. Maximum hoop stress in the section is not to exceed 35 Newton per mm square. तो एक्चुअली यहाँ पे hoop stress दिया है और उसके बेसिस पे आउटर रेडियस या फिर थिकनेस ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को वैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा क्या क्या दिया है, इंटरनल डायमीटर दिया है, सो D1 इक्वल टू 160 mm, दैट मीन्स R1 कितना हो जाएगा 80 mm। इंटरनल प्रेशर हम शो करते PO से, सेम है 8 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और मैक्सिमम स्ट्रेस भी दिया है, सिग्मा एक्स दिया है। मैक्सिमम हुप स्ट्रेस इन द सेक्शन इज नॉट टू एक्सीड 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखिए अभी यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू है 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब जो हुप स्ट्रेस है यहाँ पे ये इनर सरफेस पे दिया है या आउटर सरफेस पे दिया है, ये हमें जज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम हुप स्ट्रेस, एंड देखो प्रीवियस न्यूमेरिकल कि इनर वॉल पे हमेशा हुप स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, इसलिए फिर यहाँ ये जो 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, वो कहाँ पे दिया होगा, इनर रेडियस पे दिया होगा, ठीक है। सो ये जो दिया है सिग्मा एक्स, ये क्या है सिग्मा R1 इज इक्वल टू सिग्मा R1। ये इसलिए क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो स्ट्रेस है हुप स्ट्रेस 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये इनर रेडियस पे दिया हुआ है। Now, for solving, सपोज हमने कंसिडर किया R2 क्या रहेगा अभी यहाँ पे इस केस में, एक्सटर्नल डायमीटर, सॉरी एक्सटर्नल रेडियस, सो रेडियल प्रेशर Px इक्वल टू B/x² माइनस A। तो
तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे, इनर रेडियस ही पता है हमें, एट x इक्वल टू कितना r1 और वो कितना है 80 mm, और px कितना है, px इज इक्वल टू po इक्वल टू कितना 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेडियल प्रेशर इज 8 इक्वल टू b की वैल्यू b एज इट इज़ बाय x स्क्वायर, मतलब 80 स्क्वायर माइनस a, व्हाट इट, इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट इक्वेशन में तो वैसे तो px की वैल्यू 0 है, लेकिन ये x2 या फिर r2 हमें पता नहीं है, तो हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रेडियल प्रेशर यूज़ किया, अब हमें हूप स्ट्रेस की वैल्यू पता है, तो वो इक्वेशन यूज़ करेंगे हम। एंड हूप स्ट्रेस, सो ये 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर कहाँ पे दिया होगा, रेडियस r1 पे दिया होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इनर रेडियस पे दी जाती है। सो हूप स्ट्रेस एट x इज इक्वल टू r1 कितना है 80 और सिग्मा x कितना है 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हेंस इक्वेशन क्या रहेगा, हूप स्ट्रेस सिग्मा x इक्वल टू b बाय एक्स स्क्वायर प्लस a। तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं भी, सिग्मा x है 35 इक्वल टू b बाय एक्स स्क्वायर मतलब 80 स्क्वायर प्लस a। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो आप इक्वेशन 1 उसमें भी a और b ही है, और इक्वेशन 2 में भी a और b है, ठीक है। साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन ऑन अ कैलसी। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे b और a की वैल्यू मिल जाएगी। सो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग a एज 13.5। इसको कोई यूनिट नहीं है, इक्वेशन में जो b है a है वो जस्ट एक नंबर है, एंड b इक्वल टू 137,600। तो a और b वैल्यूज हमें मिल गई। ओके, नाउ अब आउटर रेडियस पे हम रेडियल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वेशन है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। सो नाउ अब ये रेडियल प्रेशर एट आउटर सरफेस हमें क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमें R2 निकालना है, आउटर रेडियस निकालना है, उसकी बेसिस पे हम थिकनेस निकालेंगे, ठीक है। यही हम अगर हूप स्ट्रेस का आउटर रेडियस पे अगर इक्वेशन लेते हैं, तो हमें आउटर रेडियस पे हूप स्ट्रेस कितना वो भी पता नहीं और रेडियस भी पता नहीं, तो एक ही इक्वेशन में दो अननोन हो जाएंगे। इसलिए रेडियल प्रेशर एट इनर सरफेस, सॉरी आउटर सरफेस। सो रेडियल प्रेशर एट आउटर सरफेस इक्वेशन है px इक्वल टू b बाय एक्स स्क्वायर माइनस a। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा R2 और पता नहीं वैसे तो, और px कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आउटर सरफेस पे फ्लूइड प्रेशर नहीं रहता। तो px इक्वल टू 0, b की वैल्यू हमें पता है 137,600 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर, वही निकालना है हमें, माइनस a कितना है 13.5। तो यहाँ पे R2 इजीली निकल जाएगा, ठीक है। 137,600 बाय R2 स्क्वायर माइनस 13.5। तो यहाँ पे कैल्सी भी आपको R2 इजीली मिल जाएगा, और R2 आना चाहिए 100.96। क्या है R2, आउटर रेडियस, तो अब लिखो आप mm में। वैसे हमें क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, देख लो एक बार क्वेश्चन। फाइंड द थिकनेस ऑफ मेटल, फाइंड द थिकनेस ऑफ मेटल नेसेसरी फॉर सिलेंड्रिकल शेल। तो थिकनेस निकालने के लिए बोला है। थिकनेस क्या रहेगी, इनर रेडियस पे हमने थिकनेस ऐड की तो हमें वो आउटर रेडियस मिली थी। देखो ये इनर रेडियस, ये आउटर रेडियस है, तो इनर रेडियस RO
और ये थिकनेस, और ये हो गया कंप्लीट आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस, सॉरी यहाँ पे थिकनेस क्या हो सकती, अगर थिकनेस निकालनी है हमें तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस सिंपली, हेंस थिकनेस T इक्वल टू R2 माइनस R1 इक्वल टू 100.96 माइनस R1 कितना है 80, वो तो दिया ही है। तो यहाँ पे आ रहा है 20.96 mm, ये आ गया आपका थिकनेस ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल। ठीक है, यहाँ पे बोला नहीं है स्केच करो करके। तो वैसे आप हूप स्ट्रेस एट आउटर सरफेस निकाल सकते हो क्योंकि आपको आउटर रेडियस पता है, और बाद में फिर हूप स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है, सिंपली बोला था थिकनेस निकालो, इसलिए हमने यहाँ पे प्रॉब्लम को यहाँ पे स्टॉप किया। ओके, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।